أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. اس سے پہلے والا جو رکوع جو گزشتہ کل جو ہے بیان کیا گیا، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا. 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا: آسمان کا، زمین کا، اور آسمان اور زمین کے بیچ کے اندر میں جو بارش اور بادل جو برستے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا. آگے جو ابھی آپ کے سامنے رکوع پڑھا گیا اور آیتیں پڑھی گئی، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے. آگے والی رکوع اور اس والی رکوع کے اندر میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی کہ کائنات کی چیزوں کے اندر میں غور و فکر کرے. آسمان کے اندر میں، بادلوں کے اندر میں، برسنے والی بارش کے اندر میں، بارش کے زمانے کے اندر میں جو کڑک اور بجلی جو چمکتی ہے اور گرجتی ہے، پھر بارش برستی ہے، اور زمین کے اندر میں وہ پانی قسم کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر میں آدمی غور و فکر کرے. پھر اس آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے جسم کے اندر میں اور اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کے اندر میں غور و فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی. تو گویا یہ سمجھیں کہ کائنات کی جو چیزیں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کی صفات پر دلالت کرتی ہے، اور جو چیزیں کائنات کے اندر میں پائی جاتی ہیں وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر میں رکھی ہوئی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر دلالت کرنے والی اور بتلانے والی تمہاری جانوں کے اندر میں، تمہارے نفس کے اندر میں، تمہارے جسم کے اندر میں بہت سی چیزیں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر میں بھی نشانیاں رکھی ہے
कुरान पाक की आयत, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानियाँ हैं। तो इन आयत के अंदर में गोया दो चीज़ें पाई गई। एक तो आयत कुरानियाँ पाई गई, कुरान की आयतें हैं जो हमको हमारी पैदाइश और इंसान की पैदाइश के बारे में गौर व फिक्र करने की तरफ दावत देती है। और इन आयत कुरानिया के अंदर में वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई कि इंसान की पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला ने किस तौर पर फरमाई, इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इन आयत के अंदर में बयान फरमाया। वलक़द खलक़नल इंसान, और अलबत्ता तहकीक के हमने इंसान को पैदा किया, मिन सलसाल मिन हमाइम मसनून। सलसाल का तर्जुमा है खनखनाती हुई मिट्टी। सलसाल और सलसल का माना है आवाज़ करना। ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो पहले कच्चे होते हैं, उनको आग के ऊपर में पकाया जाता है, मटके की शक्ल में या किसी और शक्ल के अंदर में। जब वो पक जाते हैं और इस्तेमाल से पहले जब खरीदने वाला कुम्हार के पास में या मटका लेने के लिए जाता है तो अपनी उंगलियों के ज़रिए से उसको मारता है और इसकी वजह से उसके अंदर में से एक आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को सलसाल कहते हैं। मिन सलसाल, सलसाल उसका तर्जुमा करते हैं खनखनाती हुई। मिन हमाइन, हमा जो है कीचड़ को कहते हैं, हमा गारे को कहते हैं। मिट्टी के अंदर में पानी मिलाओ और दाने को मिलाओ और उसकी वजह से जो गारा बनता है, उसी से पहले ज़माने के अंदर में जो है मकान भी बनाए जाते थे, कच्चे मकान इसी गारे से बनते थे। मसनून, मसनून का माना है सना हुआ और मसनून का माना है सड़ा हुआ। और एक तर्जुमा मसनून का उलमाए किराम ने ये लिखा है कि आदमी मिट्टी के साथ पानी को मिलावे और उसका गारा बनावे, गारा बना करके उसको रास्ते के अंदर में छोड़ दे ताकि वहाँ से लोग आने वाले जाने वाले उसके ऊपर में से आवे और जावे। इसकी वजह से इस मिट्टी के अंदर में चिपकने की और उसके अंदर में मजबूती की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर रोटी पकाने के अंदर में अगर आटा ज़्यादा गूंदा जाता है तो वो रोटी अच्छी पकती है और ज़्यादा गूंदा नहीं जाता तो वो रोटी कायदे से बनती या पकती नहीं है। तो एक मसनून का तर्जुमा तो ये भी किया और दूसरा मसनून का तर्जुमा किया हुआ है सड़ा हुआ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जो पैदाइश फरमाई, अब तर्जुमा सुनो, वलक़द खलक़नल इंसान, और अलबत्ता तहकीक के हमने इंसान को पैदा किया। किससे पैदा किया? मिन सलसालिन, खनखनाती हुई मिट्टी से। और वो खनखनाती हुई मिट्टी किससे बनाई? मिन हमाइम मसनून, सड़े हुए गारे से, सड़े हुए कीचड़ से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश की और इंसान का पुतला अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बयान पैदा फरमाया। वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। शरीयत के मुकल्लफ और शरीयत के पाबंद दो लोग हैं, एक इंसान है और एक जिन्नात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत पर बतलाने वाली निशानियाँ और दलालत करने वाली चीज़ों को पहले ज़िक्र फरमाया कि इंसान की पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे फरमाई। अगर अक़ली एतबार से अगर कोई आदमी देखे और गौर व फिक्र करे तो मिट्टी और मिट्टी के ज़रिए से उसका गारा बनाना, फिर उसका पुतला बनाना और फिर इंसान की शक्ल बनाना, फिर उसके बाद में उसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रूह फूंकना और उसका फिर ज़िंदा इंसान बन जाना, ये अक्ल के अंदर में जो आता है तो कुछ बहरी चीज़ लगती है। मिट्टी के ज़रिए से पुतला, मिट्टी के अंदर में फिर रूह को डालना और फिर जिस्म इंसानी का बनाना और पैदा करना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
کہ اس سے بھی اہم کام ہم نے کیا. مٹی نظر آتی ہے, گارا نظر آتا ہے, اس کا پتلا نظر آتا ہے, اس کا جسم نظر آتا ہے, اس کی شکل و صورت نظر آتی ہے, اس کے اندر میں ہم نے روح پھونک دی. یہ تم کو اگر عقل سے دور لگتا ہے تو اس سے بڑا کام اور اس سے بڑھ کر کام ہم نے دوسرا کام کیا. وہ کام کون سا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ, اور جناتوں کو ہم نے پیدا کیا من قبل, اس سے پہلے, یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, من نار السموم, لو کی گرمی سے. نار آگ کو کہتے ہیں, اور سموم یہ گرمی کے زمانے کے اندر میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, اور گرم گرم جو ہوائیں چلتی ہے اس کو سموم کہتے ہیں. عام طور پر ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, زمین سے پیدا کیا, اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا. عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا نہیں کیا. جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا نہیں کیا. آگ سے نکلنے والی جو گرم ہوائیں ہیں, سموم گرم ہوائیں, ان گرم ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا. ایک غلط فہمی ہے ہماری. عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. آگ سے پیدا نہیں کیا. آگ سے جو گرمی نکلتی ہے یا گرم ہوائیں جو چلتی ہے جس کو سموم کہا, گرم لو کہا جاتا ہے اس کو اردو کے اندر میں, گجراتی کے اندر میں بھی لو کہا جاتا ہے. گرمی کے زمانے میں کہتے ہیں کہ لو بہت لگتی ہے, اور آدمی جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے گرمی کے زمانے میں تو اس کے چہرے کے اوپر میں ایک قسم کی گرمی لگتی ہے, جلن ہوتی ہے, اور کھیت کے اندر میں کام کرنے والے لوگوں کے چہرے جو ہے گرمی کی وجہ سے کالے پڑ جاتے ہیں. ان گرم ہواؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ, اور جناتوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے من نار السموم, گرم ہواؤں سے اور لو کے ذریعہ سے. دنیا کے اندر میں جنات بستے تھے, لیکن جب انہوں نے فتنہ, فساد, قتل و غارت گیری, خون ریزی وغیرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. ان کے اندر میں جو نیک جنات تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہاڑوں کے اندر میں رہو, سمندروں کے کناروں میں رہو, جنگلوں کے اندر میں رہو, یا ایسے ویران جو مکانات ہے اس کے اندر میں رہو, اور انسانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا. پہلے پارے کے اندر میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں اس وقت کو یاد کرو جب کہ تیرے پروردگار نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اوپر میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تم ایسی مخلوق کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین کے اندر میں فتنہ فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. تو یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ فرشتوں کو دو چیزوں سے معلوم ہوا. ایک تو یہ کہ اس سے پہلے جنات دنیا کے اندر میں رہتے تھے, انہوں نے فتنہ فساد اور غارت گیری, قتل و غارت گیری کی تھی. اس کو دیکھ کر کے فرشتوں نے اعتراض کیا. اور دوسرا ایک علمی بات ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں زمین کے اندر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کے لفظ سے فرشتوں نے سمجھا کہ خلیفہ کی ضرورت کب پڑتی ہے. دنیا کے اندر میں جب لوگ بسے اور اس کے اندر میں جھگڑے ہو, اختلافات ہو, کوئی کسی کے حق کو دباوے اور کوئی کسی کے حق کو نہ چھوڑے, کسی کے اوپر میں ظلم کرے, تو فیصلہ کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے خلیفہ. اس سے فرشتوں نے سمجھا کہ تو زمین کے اندر میں ایسی مخلوق بنانے والا ہے کہ جو فتنہ فساد وغیرہ مچائے گی. مگر کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ, اور جناتوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا گرم ہواؤں کے ذریعہ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ, اور یاد کرو جب کہ تیرے پروردگار نے فرمایا فرشتوں سے انی خالقن, میں پیدا کرنے والا ہوں, بصرن,
एक इंसान को मिन सलसालिन खनखनाती हुई, मिन हमाइन मसनूनिन सड़ी हुई मिट्टी से, खनखनाती हुई सड़ी हुई मिट्टी से मैं एक इंसान को पैदा कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़इज़ा सव्वयतुहु, फिर जब मैं उस इंसान को कामिल और मुकम्मल तौर पर पूरा में बना डालूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उस इंसान के अंदर में अपनी रूह को मैं फूंक डालूँ, फ़क़अू लहू साजिदीन, उसके लिए तुम सजदे के अंदर में गिर जाना। तफसील भी किताबों के अंदर में लिखी है कि फरिश्ते को भेजा गया दुनिया के अंदर में मिट्टी लाने के लिए। जब मिट्टी फरिश्ता लेने लगा तो ज़मीन चीखी, चिल्लाई और रोई और मिट्टी लेने नहीं दी, फरिश्ता वापस चला गया। फिर उसके बाद में जो है इज़राइल जो सख्त है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा ज़मीन के ऊपर में, और यूँ कहते हैं कि ये ज़मीन चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन इज़राइल ने जो कुछ मुट्ठियाँ अपनी ज़मीन के अंदर में से ले ली, और इस तौर पर ली कि किस्म किस्म की मिट्टी उनकी मुट्ठी के अंदर में आ गई। यही वजह है कि रूए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के रंग अलग अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है, और कोई बीच के अंदर में है, कलर जिसको कहते हैं। गोरे लोग शादी करते हैं काली औरतों से और काले लोग शादी करते हैं गोरे लोगों से, तो बीच के अंदर में जो औलाद पैदा होती है न काली और न गोरी, इसको कलट कहते हैं। तो अजीब व गरीब किस्म के जो रंग इंसानों के अंदर में जो नज़र आते हैं, ये इसी वजह से नज़र आते हैं कि ज़मीन का जो रंग जो था, जो मिट्टी ली गई थी, उसके रंग भी अलग अलग थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इज़ा सव्वयतुहु, मैं उसको पुतला बना डालूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसके अंदर में अपनी रूह को मैं फूंकूँ। तफसीर के अंदर में कुछ बातें और भी लिखी हुई है जो सही हदीस के अंदर में नहीं है, सही हदीसों के अंदर में वो बातें नहीं पाई जाती। कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया तो शैतान ने चक्कर लगाया, चारों तरफ से देखने लगा कि ये क्या है। फिर उसके बाद में जो है मुंह के रास्ते से वो उतरा नीचे और पाखाना के रास्ते से निकल गया, और पेट के अंदर में बीच के अंदर में देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं, ये तो खोखला है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं अपनी रूह को उसके अंदर में फूंक डालूँ। रूह के बारे में उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर के अंदर में 100 बातें लिखी हुई है, 100 अक़वाल लिखे हुए हैं, 100 कौल लिखे हुए हैं। एक बात जाने और माने और सब चीज़ों का मजमुआ ये है कि ये जो रूह है, रूह ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, बस इससे ज़्यादा हम समझ नहीं सकते और इससे ज़्यादा कोई समझा भी नहीं सकता। कुरान पाक कहता है वयसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दे, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, ए नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दो कि रूह मेरे रब का अम्र है, मेरे रब का हुक्म है। बस जब तक हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का इंसान के जिस्म के अंदर में बाकी रहता है, वहाँ तक इंसान जिंदा रहता है, और जैसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ख़त्म हो गया या उसका वक्त मुकर्रर आ गया तो ये रूह जो है चली जाती है और उसका हरकत करना और दिल की धड़कन वगैरह बंद हो जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सारी कायनात पैदा हुई, दरिंदे चरिंदे, फाड़ खाने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू हशरात और इंसान और जिन्नत, सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी अल्लाह के हुक्म से हुई। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर में रूह फूंकी तो ये नहीं कहा कि मैंने उसके अंदर में रूह डाल दी, मेरी रूह डाल दी। व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, रूह का माना रूह,
और रूही का माने मेरी रूह। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैंने अपनी रूह को आदम के जिस्म के अंदर में डाल दी। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये इंसान के इकराम के लिए, एहतराम के लिए, इज़्ज़त के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह आदम के पुतले के अंदर में डाल दी। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं उसको मुकम्मल बना डालूं और मैं उसके अंदर में रूह को फूंक डालूं तो तुम उसके सामने सजदा करने के लिए गिर जाना। काऊ काऊ ये हुक्म का सीगा है, अम्र का सीगा है कि तुम उसके सामने सजदा करते हुए झुक जाना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस, फरिश्तों ने सजदा किया तमाम के तमाम ने एक साथ, मगर इब्लिस ने अबा, उसने इनकार कर दिया। अन यकून मअस साजिदीन, कि वो सजदा करने वालों के साथ हो जाए। इस पर एक बात तो यूँ समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने के लिए जो हुक्म दिया था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए हुक्म नहीं दिया था। सजदा करना था अल्लाह को, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के सामने सजदा करना था। जैसे हम और आप काबतुल्लाह के इर्द गिर्द चारों तरफ नमाज हम पढ़ते हैं या काबतुल्लाह के सामने हम नमाज पढ़ते हैं, तो हम काबतुल्लाह को सजदा नहीं करते, हम सजदा करते हैं अल्लाह को। किसके सामने? काबतुल्लाह के सामने। इसी तरीके से सजदा करना था अल्लाह को आदम अलैहिस्सलाम के सामने। बहुत से लोग यूँ समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा था। अल्लाह ताला हुक्म नहीं देता। कुरान पाक के अंदर में जहाँ कहीं भी देखो तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि उसके अलावा किसी की इबादत मत करो, किसी के सामने सजदा मत करो। तो अल्लाह ताला इनकार करे और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे कि आदम को सजदा करो। आदम को सजदा नहीं करना था, सजदा तो करना था अल्लाह ताला की ज़ात को, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के सामने सजदा करना था। अच्छा, अब एक बात और बता दें कि इस उम्मत के अंदर में सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जायज़ है, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं। अगली उम्मतों के अंदर में सजदे तहिया जायज़ था, सलामी का सजदा। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है, इस तरीके से अगली उम्मतों के अंदर में कोई आता तो आकर के वो सजदा करता, ये सलामी समझी जाती थी। बड़े लोग अगर हैं उनके पास में अगर छोटे लोग पहुँचे तो वो सजदा करते थे। इसीलिए सूरह यूसुफ के शुरू के अंदर में है, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और अपने अब्बा के सामने तज़किरा किया था, इन्नी रायतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन। इन्नी रायतु, मैंने ख्वाब देखा, अहद अशर कौकबन, ख्वाब के अंदर में 11 सितारों को देखा, वश्शम्स सूरज को देखा, वल क़मर चाँद को देखा, रायतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये उन्होंने ख्वाब देखा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और इस ख्वाब की ताबीर वो जानते थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये ख्वाब किसी के सामने बयान मत करना, जिक्र मत करना। खैर, पूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जब ख़त्म होता है और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई जब मुल्क शाम से मुल्क मिस्र पहुँचते हैं, जहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र बने हुए थे, तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और 11 बेटे ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर में पहुँचते हैं। उनके दरबार में पहुँचने के बाद ये सारे के सारे माँ और बाप और 11 भाई ये तमाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे के अंदर में गिर गए। फ़क़अू लहू, ये सजदे के लिए अंदर में गिर गए। अभी आयत मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, सूरह यूसुफ के अंदर में ये जिक्र मौजूद है। तो वहाँ पर ये जो सजदा था
ये सजदे इबादत नहीं था, सजदे तहिया था, यानी सलामी। उनके मذहब के अंदर में, उनके ज़माने के अंदर में ये समझी जाती थी कि एक छोटा आदमी बड़े आदमी के सामने झुक जाओ और सजदा करे, ये सजदे तहिया कहलाता है। इस उम्मत के अंदर में सजदे इबादत के अलावा किसी भी किस्म का सजदा जायज़ नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को वो सजदा करे, लेकिन जायज़ नहीं है। सजदे तहिया भी जायज़ नहीं है। सजदे इबादत का सजदा ये तो जायज़ ही नहीं है, लेकिन सलामी का सजदा ये भी जायज़ नहीं है। बहरकैफ फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लिस, तो ये जो सजदा था ये सजदा तहिया था, सजदा इबादत नहीं था, सलामी का सजदा था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम के तमाम ने एक साथ, मगर इब्लिस ने अबा अन यकून मअस साजिदीन, इनकार कर दिया इब्लिस ने ये कि सजदा करने वालों के साथ में हुआ। एक बात मुफस्सिरीन ने यहाँ पर ये लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया था, शैतान को हुक्म दिया नहीं था। फरिश्तों को हुक्म दिया था, शैतान को हुक्म दिया नहीं था। तो यूँ कहते हैं कि शैतान ये कह सकता था कि सजदा करने का हुक्म तूने तो फरिश्तों को दिया, मुझे थोड़ी हुक्म दिया है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसने सजदा करने से इनकार किया तो शैतान ने ये नहीं कहा कि बारी ताला तूने तो फरिश्तों को सजदा करने के लिए हुक्म दिया, मुझे हुक्म नहीं दिया। इसलिए कि ये जो है फरिश्तों की जमात के अंदर में इसको बड़ा बनाया गया था इबादत करने की वजह से। कान मिनल जिन्न, इब्लिस के बारे में आता है, शैतान के बारे में आता है कान मिनल जिन्न, ये तो जिन्नातों में से था, ये जिन्नातों में से था। फफसक अन अम्र रब्बी, उसने अपने परवरदिगार की हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऊपर बुला लिया था और फरिश्तों के अंदर में उसका शुमार होता था। तो इसलिए जब फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदे का तो गोया इसको भी हुक्म हुआ, इसीलिए उसने कोई और बहाना नहीं बनाया। अल्लाह ताला शैतान से पूछते हैं, काल, अल्लाह ताला ने फरमाया या इब्लिस, ए इब्लिस, मालक, क्या हो गया तुझे, अल्लाह तकून मअस साजिदीन, कि सजदा करने वालों के साथ तू नहीं हुआ। सजदा करने वाले फरिश्ते थे तो उनके साथ में तू नहीं आया, क्यों सजदा करने वालों के साथ में नहीं हुआ। तो शैतान ने यहाँ ये नहीं कहा कि बारी ताला तूने फरिश्तों को हुक्म दिया था, मुझे हुक्म नहीं दिया था। शैतान ने कहा, काला, शैतान ने कहा, लम अकुन ले असजुद ले बशरिन, मैं ऐसे इंसान को सजदा करने वाला नहीं हूँ। खलक़तहू, जिस इंसान को तूने पैदा किया, मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून, खनखनाती हुई गारे से, सड़े हुए गारे से बनी हुई मिट्टी से जिस इंसान को तूने पैदा किया, उस इंसान को मैं सजदा करने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा दूसरी जगहों के अंदर में कुरान पाक के अंदर में मौजूद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से पूछा कि तूने क्यों सजदा नहीं किया, तो उसने वजह बतलाई, दलील बतलाई उसने कि शैतान ने यूँ कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया या आग की गर्मी से पैदा किया। वो आदत पड़ी हुई है आग से पैदा करने की, तो वही लफ्ज़ निकल जाता है। तो आग की गर्मी से तूने मुझे पैदा किया और इस इंसान को मिट्टी से पैदा किया। बस ये इतना इसने जवाब दिया। उलमा किराम ने लिखा कि सबसे पहले कयास करने वाला, अक्ली दलीलें और अक्ली घोड़े दौड़ाने वाला सबसे पहले ये शैतान था। उसने अक्ली घोड़े दौड़ाए। गोया अल्लाह ताला को यूँ कहता है कि तूने जब आग की गर्मी से मुझे पैदा किया तो आग की सिफत और आग का खस्सा ऊपर जाने का है। आग ज़मीन के ऊपर में अगर जलाएंगे तो ऊपर जाती है, और मिट्टी की सिफत और खासियत नीचे आने की है। दूसरे तीसरे माले के ऊपर में से अगर किसी पत्थर को फेंकेंगे
تو آپ کی ذات کی طاقت اس پتھر کے ساتھ جب تک لگی ہوئی ہے وہاں تک وہ اوپر جائے گا، اور آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی تو وہ پتھر نیچے آئے گا۔ تو گویا ابلیس یہ کہتا ہے کہ تو نے آنکھ سے مجھے بنایا تو میری خاصیت اور صفت اوپر جانے کی ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور اس کی خاصیت اور صفت نیچے جانے کی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے، ایسا نہیں کہ میں مجھے اس کو سجدہ کروں۔ قال، یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، وہاں سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، اس لیے کہ تو ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا ہے۔ اب یہ کہاں سے نکلا، جنت سے یا عالم بالا سے، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ قال فخرج منہا فإنک رجیم، تجھے دھتکار دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش کا زمانہ تھا، تو گویا اوپر ہی نہ تھا وہ، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کو نکال دیا۔ قال فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، قرآن کے اندر میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، تجھ پر لعنت ہو، یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جزا اور بدلے کے دن تک۔ قَالَ رَبِّي فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، شیطان کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی، عمر مانگی، لمبی عمر مانگی۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت تو دی جاتی ہے لیکن الی یوم یبعثون تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم، وقت مقرر کے دن تک۔ اب اس کو تھوڑا سا یوں سمجھو کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کے لیے حکم دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا اور ساری مخلوق مر جائے گی، ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اور حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ 40 سال تک سناٹا چھایا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے اندر میں پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج حکومت اور بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے گا۔ قال لمن الملک اليوم قال للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا کہ حکومت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو قہار اور غلبہ والا ہے، اسی کے لیے ہے۔ 40 سال تک سناٹا چھایا جائے گا، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوگی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت کے اندر میں ساری کائنات پھر جو ہے زندہ ہو جائے گی۔ اب یوں سمجھو کہ شیطان نے مہلت مانگی، کہاں تک کی مہلت مانگی؟ دوبارہ زندہ جب مخلوق کو کیا جائے وہاں تک کی عمر چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول تو فرمایا لیکن وہاں تک نہیں، کہا کہ نہیں، الی یوم یبعثون، وہاں تک نہیں، دوبارہ زندہ کیا جائے گا مخلوق کو، وہاں تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم یعنی وقت مقرر جو قیامت کا دن ہے، اس دن تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھو کہ شیطان نے، ابلیس نے زندگی طلب کی تھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک اس کو زندگی ملے، یعنی قیامت آوے اور قیامت کے اندر میں بھی یہ ہلاک اور برباد نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط منظور نہیں کی، کہا کہ نہیں، تیری دعا قبول اور تیری شرط منظور، لیکن کہاں تک؟ قیامت تک، قیامت کا دن تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی دے رکھی ہے اور اس کو مہلت دے رکھی ہے۔ قال ربی
शैतान कहने लगा, ई मेरे परवरदिगार, बिमा अग़वैतनी, इसलिए कि तूने मुझे गुमराह कर दिया। देखा शैतान अल्लाह ताला को क्या कहता है, बिमा अग़वैतनी, इसलिए कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, तूने मुझे रास्ते से भटका दिया। अल्लाह ताला ने कौन सा रास्ते से भटकाया शैतान को? अल्लाह ताला ने कैसे उसको गुमराह कर दिया? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का, और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो गुनाह तो उसने किया, नाफरमानी तो उसने की, और फिर जिक्र करता है अल्लाह के सामने कि रब्बी बिमा अग़वैतनी, ई मेरे परवरदिगार, इसलिए कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, रास्ते से तूने मुझे भटका दिया। लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्दी, इस इंसान को और इस इंसान की नस्लों को और उनकी औलाद को ज़मीन के अंदर में उनके लिए दुनियावी चीज़ों को मुज़य्यन करके पेश करूँगा। वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और इन तमाम के तमाम इंसानों को मैं राह से भटका दूँगा और उनको गुमराह कर दूँगा। अब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम जो सबब बने, यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा न करना ये सबब बने, और शैतान की मरदूद होने पर और उस पर लानत भेजे जाने पर, इसलिए उसने कसमें खाई कि जिस इंसान की वजह से मैं अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से भगाया गया, मुझे मलऊन करार दिया गया, मुझ पर लानत भेजी गई, इसी इंसान को मैं भी भटकाऊंगा और जन्नत के रास्ते से हटाकर, अल्लाह के रास्ते से हटाकर, अल्लाह के रसूलों के रास्ते से हटाकर मैं अपने रास्ते के ऊपर में लाऊंगा और जहन्नम के रास्ते के ऊपर में लाऊंगा। तो ये उसने कसमें खाई। फिर कहता है, शैतान खुद कहता है, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन तेरे वो बंदे इंसानों में से मुखलसीन, जिनको चुना गया हो, जिनको अलग रखा गया हो। अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी खुद हिफाजत फरमाते हैं। तो ये उसने कहा कि जो तेरे मुखलिस बंदे हैं और नेक बंदे हैं, उसके ऊपर में मेरा दाव नहीं चलेगा। काल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हादा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये रास्ता है, ये मेरी तरफ आने का रास्ता है, ये सीधा है, मेरा रास्ता सीधा है। अब इस रास्ते के मुताबिक जो चलेगा तो जन्नत में जाएगा, और तेरी बातों को जो मानेगा और मेरी बातों का इनकार करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ताला ने भी बयान फरमा दिया कि मेरे बंदे उनके ऊपर में तेरे लिए कोई काबू और कंट्रोल की ताकत नहीं होगी। यानी इंसान के ऊपर में काबू पाने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए, या इंसान को गुमराह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को ऐसी ताकत नहीं दी है कि वो तुमको मजबूर कर दे, गुमराह कर दे और कुफ्र और शिरक के ऊपर में मजबूर कर दे। अल्लाह ताला मना फरमाते, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदे क्या उसके ऊपर में तेरा कोई गलबा नहीं चलेगा। इल्ला मन इत्तबअक, मगर जो इंसान तेरी पैरवी करे और तेरा इत्तिबा करे, मेरी और मेरे नबियों की बात की नाफरमानी करे और गुनाह लोगों में से हो, तो उस पर तेरी बात चलेगी। अब जो लोग तेरी बात को मानेंगे तो वह इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, और बेशक जहन्नम तो फिर उन तमाम का वादा है। लहा सबअत अबवाब, उसके लिए 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उन मक़सूम, उनमें से हर दरवाजे के लिए कोई ना कोई हिस्सा और कोई ना कोई जुज़ तकसीम किया हुआ है। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। पहले भी हम आपके सामने जिक्र कर चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब जहन्नम का या जहन्नमियों का तज़किरा फरमाते हैं तो साथ में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों का और जन्नत वालों का तज़किरा फरमाते हैं। तो आगे वाली रुकू के अंदर में अल्लाह ताला ने जन्नतियों का और जन्नत वालों का तज़किरा फरमाया है, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नतिन व अयून के अंदर में। आखिरी बात ये है कि यहाँ उलमा ने लिखा है कि जहन्नम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे,
या यूँ फरमाया कि जहन्नम के 7 दर्जे और 7 तबकात, यानी 7 माला जहन्नम होगी, 7 दरवाजे नहीं, 7 माला होगी। और जन्नत के 8 दरवाजे होंगे या जन्नत के 8 माले होंगे, 8 दर्जात होंगे। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि 7 जहन्नम के दरवाज़ों के मुकाबले में 7 जन्नत के दरवाजे, और एक दरवाज़ा ज़्यादा है, ये एक जन्नत का जो दरवाज़ा ज़्यादा है, वहाँ से ऐसे लोग जन्नत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दाखिल किया जाएगा कि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से दाखिल करेंगे, उनके अमल की वजह से नहीं, उनकी नेकियों की वजह से नहीं। तो जन्नत के अंदर में एक दरवाज़ा स्पेशल होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जिनको अपने फजल से दाखिल करेंगे।